हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में स्टडी करेंगे। पहला स्टडी करते हैं एरर इन सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस में क्या एरर है, इसको हम लोग आज स्टडी करते हैं। एरर इन सम, सपोज we have a physical quantity that we have measured x equals to a plus b. Let suppose कर लेते हैं delta a equals to absolute error. Delta a is absolute error in measurement of a. In measurement of a. Delta b is the absolute error in measurement of b. So if delta is the absolute error in measurement of A, delta B is the absolute error in measurement of B, then obviously there is an absolute error in measurement of X also. Okay, so that we will just suppose it as delta X. So this implies X plus minus delta X equals to A plus minus delta A plus B plus minus delta B. So finally we can say the delta A is the absolute error in measurement of A, delta B is the absolute error in measurement of B. So delta X is the absolute error in measurement of X, that is equals to A plus B. So finally we can write X plus minus delta X equals to A plus B plus minus delta A and plus minus delta B. Since we know that A plus B is just equals to X, that is from equation number 1. So X and X will cancel out, so we will get plus minus delta X equals to plus minus delta A plus minus delta B. So this is the final result. Okay. प्लस माइनस क्यों करते हैं आपको पता ही होगा, एब्सोल्यूट एरर आपने पढ़ा हुआ है। प्लस माइनस को जो हम एरर फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकती है, इस वजह से हम उसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। फाइनल रिजल्ट जो हमारा आता है मेजरमेंट का, सो दैट्स वाई दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट वी हैव गॉट, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। एंड फाइनली इन मैग्नीट्यूड, इफ वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड, then mod delta x equals to mod of delta a plus mod of delta b. Okay, in magnitude we will take the terms positive. Okay, next thing is over here that how many possible combinations are there in some of these two physical quantities. So we can say that possible errors, जो possible errors हमें यहाँ मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए एंड माइनस डेल्टा बी. So there are maximum 4 possible combinations of error that we will get in the sum of these two physical quantities. ठीक ऐसे ही हम लोग क्या करना है कि हम लोग को सब्ट्रैक्शन में पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल कॉम्बिनेशन एरर के क्या क्या हो सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हमें एरर इन डिफरेंस निकालना हो, एरर इन डिफरेंस, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे बस माइनस लगाएंगे हम लोग, ये टर्म आपका माइनस हो जाएगा। अगेन a माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स, सो एक्स एंड एक्स विल कैंसिल आउट, सो फाइनली यू विल गेट द सेम रिजल्ट दैट वी हैव गॉट इन द सम। यानी कि सम और डिफरेंस में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हमको मिलते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड एरर इन मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी। एरर इन प्रोडक्ट, that is equals to a into b. Again we will say, we can say that delta is the absolute error in measurement of a, delta b is the absolute error in measurement of b. So finally we can say that delta x is the absolute error in measurement of x, which is equal to the sum multiplication of these two physical quantities. So finally we can write delta x plus minus delta x equals to a plus minus delta a
b plus minus delta b. Okay. Finally, we can take x common from here. So 1 plus minus del x by x equals to, just take a common, 1 plus minus delta a by a. Just take b common from here, 1 plus minus delta b by b. ओके एक चीज़ याद रखिएगा, x कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि डेल्टा से x अलग कर दे. डेल्टा x जो है अपने आप में एक सिंगल वैल्यू है, वो एक एरर की वैल्यू है. दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करने पर जो एरर हमें मिलता है डेल्टा, दैट इज डेल्टा x, डेल्टा n, डेल्टा b. तो ऐसा मिस्टेक आप नहीं करेंगे कि डेल्टा से x और a को अलग कर दे. डेल्टा x, डेल्टा a, डेल्टा b एक सिंगल वैल्यू है जिसको उससे रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि a इंटू बी, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी. तो ए बी चूँकि आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू ए बी, सो ए बी वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ ए बी वी कैन जस्ट राइट ओवर हियर x, and finally x and x will cancelled out, so we can get 1 plus minus delta x by x equals to 1 plus minus delta a by a into 1 plus minus delta b by b. So this is the result. After cancelling out, x will cancel out and we'll get the result. Just multiplying this term in terms को multiply कर देंगे. आइए देखते हैं. 1 plus minus delta x by x equals to 1 plus minus delta a by a plus minus delta b by b plus minus delta a delta b upon a b. ओके. फाइनली वी कैन सी, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जैसा एरर डेल्टा ए, डेल्टा बी, ये सब वैल्यूज़ काफ़ी छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं. सो एज वी नो दैट डेल्टा ए इज़ वेरी मच लेस देन ए एंड डेल्टा बी इज़ ऑल्सो वेरी मच लेस देन बी. सो फाइनली इफ डेल्टा ए इज़ लेस देन ए, डेल्टा बी इज़ लेस देन बी, सो व्हाट कैन वी से दैट द प्रोडक्ट डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन जस्ट नेग्लेक्ट इट. Therefore, delta A delta B upon AB can be neglected. It can be neglected. तो delta A delta B upon AB को हम neglect कर देंगे because that value is very very small. So finally you can just see over this side, the result comes out to be 1 plus minus delta x by x equals to 1 plus minus delta a by a plus minus delta b by b. So this is the result that we have got over here. Now what will happen? One will also cancel out. So finally plus minus delta x by x equals to plus minus delta a by a plus minus delta b by b. So this is the final result that we have got over here. Again, if we are dealing with the magnitude, we can take only the mod over here, nothing more than that. In magnitude, we will take the terms to be positive. Mod delta x by x, mod delta a by a plus mod delta b by b. So this is the final result that we have got over here. In magnitude, the terms are taken to be positive. So again, the maximum possible combinations of error that we will get over here, there are 4 that we have done just previously. तो
तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आप देख सकते हैं, एक बार प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस. इन दिस वे वी कैन अगेन गेट maximum 4 possible combinations of error in product of two quantities. Okay. In a similar way, we can solve the error, the possible combination of error in division of two physical quantities. दो टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, आइए उन्हें भी स्टडी कर लेते हैं. x इक्वल्स टू a बाई बी. दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया x इक्वल्स टू a बाई बी. तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट दैट डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, so delta x is the absolute error in measurement of x, and we can write the equation as x plus minus delta x equals to a plus minus delta a upon b plus minus delta b. Just take x common from here, 1 plus minus del x by x equals to a कॉमन लेते हैं, 1 plus minus del a by a, डिवाइड बाई b कॉमन लेते हैं, 1 plus minus delta b by b. अगेन वी कैन सी a अपॉन बी एक्स के इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारा टर्म जो आता है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी. ओके. अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे और तब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे. इसकी रिवर्स वैल्यू लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर माइनस 1. ओके. अब इस टर्म को क्या करेंगे, बाइनोमियली हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स and neglecting higher terms. This is the binomial theorem that you have studied in mathematics, or you might have been studying that topic. So expanding binomially and neglecting higher terms. तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा मैंने बताया कि डेल्टा b अपॉन b ये वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी है, इट इज़ वेरी मच लेस देन 1. तो 1 से छोटा है तो इसका जो हायर पावर्स होगा और भी छोटा होगा. इस वजह से हम हायर पावर्स को कंसिडर नहीं करते हैं. हम बस यहाँ क्या करते हैं कि 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी है पावर माइनस 1, तो बस पावर माइनस 1 को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी. ओके. माइनस 1 को अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी आपको प्लस माइनस ही मिलेगा, कोई और टर्म तो मिलेगा नहीं, और बाकी सारे हायर टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे. सो देयरफॉर द रिजल्ट कम्स आउट टू बी वही रिजल्ट आ रहा है, देख सकते हैं आप मल्टीप्लिकेशन में जो आया हुआ था. अगेन द सेम रिजल्ट, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी. अगेन द प्रोडक्ट टर्म हैज़ बीन इग्नोर्ड, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी का टर्म इग्नोर कर दिया गया क्योंकि काफ़ी स्मॉल है, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग किए थे. फाइनली द रिजल्ट इज डेल एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी. तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर आता है. तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमको मिल रहे हैं, सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. तो इस तरह से हम लोग 4 पॉसिबल जो 4 टर्म्स हमारे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
तो उसमें हम पॉसिबल एरर्स कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखें। डेल्टा एक्स बाई एक्स आप जानते हैं फ्रैक्शनल एरर होता है, और परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो इंटू 100 एज पर क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी होंगी, रख के हम लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं ईजिली। अब इनके बेसिस पर क्या है कि क्वेश्चंस हैं जिसको हमें सॉल्व करना होगा, तो क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस को आइए एक एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। एक काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है y इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है और ए बी सी के परसेंटेज एरर्स भी दिए हुए हैं। परसेंटेज एरर इन ए में जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है इन मेजरमेंट ऑफ ए इज 1%, in B is 2%, and percentage error in measurement of C is 3%, and measurement of D is 4%. So these are the percentage error given in the measurement of this physical quantity Y, and we have to find, these are the error in measurement of A, B, C, D, and we have to find the percentage error in measurement of Y. Okay. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी आप देखे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे हम लोग। अब यहाँ ए क्यूब का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हो गया, ए इंटू ए, बी स्क्वायर का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म हो गया। तो अभी आपने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन है तो एरर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। अभी आपने देखा कि डिवीजन है तो भी एरर को हम लोग ऐड ही करते हैं। सो डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल्स टू ए क्यूब, तो पावर 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, और ए क्यूब बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी। जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म ही है, अपॉन रूट सी, इसको भी प्लस रूट 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस डी डेल्टा डी बाई डी। ओके, तो यहाँ पर क्या करता है, जो पावर है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी पावर है। अब मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सबको प्लस करें क्योंकि वही रिजल्ट हमारे आया हुआ है अभी डेरिवेशन में। आप देखें परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ये जो है ये परसेंटेज एरर इन ए, और ए में जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है ए बी सी डी का लिखा है, पुटअप कर दीजिए। 1%, बी का परसेंटेज एरर 2%, सी का परसेंटेज एरर 3% और डी का परसेंटेज एरर 4%। जस्ट सॉल्विंग दिस वी कैन इजिली गेट द रिजल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके रेफरेंस बुक और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर जो हम आगे स्टडी करेंगे उसमें हम लोग कुछ एरर के कुछ और भी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।